डॉक्टर बाबा साहेब शिक्षण संस्था के बी शंकरानंद कला तथा वाणिज्य महाविद्यालय कुर्ची आज हिंदी विभाग की ओर से एक दिवसीय विशेष व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है। आज का व्याख्यान माला का विषय है हिंदी भाषा की दशा और दिशा और इस व्याख्यान माला के मुख्य अतिथि डॉक्टर मंजुनाथ एन अंबिग और आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं नीति काव्य एक काव्य के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। काव्य के लिए गाने के लिए मैं कीर्ति हड़पर जी को आमंत्रित करती हूँ। ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ದಾಹವೆಂದು ನೀರು ಕೇಳಿದವನ ಜೀವ ಉಳಿಸದೆ ಶವಕ್ಕೆ ಅಮೃತವ ಸುರುವಿದರೇನೋ ಫಲ. ದಾಹ ಎಂದು ನೀರು ಕೇಳದವನ ಜೀವ ಉಳಿಸದೆ ಶವಕ್ಕೆ ಅಮೃತವ ಸುರುವಿದರೇನೋ ಫಲ. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುವನ ಕಂಡು ಕರುಣೆ ತೋರದೆ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅತ್ತರೇನೋ ಫಲ. ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟವರ ನಿಜ ಸೇವೆ ನೀ ಮಾಡದೆ ನಿತ್ಯ ಶಿವ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೇನೋ ಫಲ. ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನೀ ತೋರದೆ ಮನುಜ ಕುರುಬುದ ಕೇಳಿದರೇನೋ ಫಲ. ದಾಹವೆಂದು ನೀರು ಕೇಳಿದವನ ಜೀವ ಉಳಿಸದೆ ಶವಕ್ಕೆ ಅಮೃತವ ಸುರುವಿದರೇನೋ ಫಲ. ಹಸಿದು ಬಂದವರಿಗೆ ಹಿಡಿ ಅನ್ನ ನೀ ನೀಡದೆ ಕೋಟಿ ಹಣದಾನ ಮಾಡಿದರೇನೋ ಫಲ. ನಿನ್ನ ಮನವನ್ನು ಕಡುಶುದ್ಧವಾಗಿಡಿಸದೆ ಬರಿತನವನ್ನು ಮಡಿ ಮಾಡಿದರೇನೋ ಫಲ. ದಾಹವೆಂದು ನೀರು ಕೇಳದವನ ಜೀವ ಉಳಿಸದೆ ಶವಕ್ಕೆ ಅಮೃತವ ಸುರಿದರೇನೋ ಫಲ. ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅರಿಯನ್ನು ನೀ ಪಡೆಯದೆ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಓದಿದರೇನೋ ಫಲ. ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವವ ನೀ ನೀಡದೆ ನಿತ್ಯ ಜಪಮಾಲೆ ನಿಸಿದರೇನೋ ಫಲ. ದಾಹ ಎಂದು ನೀರು ಕೇಳದವನ ಜೀವ ಉಳಿಸದೆ ಶವಕ್ಕೆ ಅಮೃತವ ಸುರುವಿದರೇನೋ ಫಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀ ಮಾಡದೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗದೆಂದು ಅತ್ತರೇನೋ ಫಲ. ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಜ್ಞಾನಿ ನೀನಾಗದೆ ಮತ್ತೆ ಪವದಲ್ಲಿ ನರಳಿದರೇನೋ ಫಲ. ದಾಹವೆಂದು ನೀರು ಕೇಳದವನ ಜೀವ ಉಳಿಸದೆ ಶವಕ್ಕೆ ಅಮೃತವ ಸುರುವಿದರೇನೋ ಫಲ. ಶವಕ್ಕೆ ಅಮೃತವ ಸುರುವಿದರೇನೋ ಫಲ. ಶವಕ್ಕೆ ಅಮೃತವ ಸುರುವಿದರೇನೋ ಫಲ. धन्यवादಗಳು. धन्यवाद कीर्ति जी। अब सुनाई दे रहा है ना जी? हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ, सुन रहा जी। अब स्वागत के लिए मैं प्रोफेसर एमएल खजीडोनी सर जी को आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर एमएल खजीडोनी सर. ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಮನ್ ಸರ್ ಕೇಳತ್ರಿ? ಹಾ ರೀ, ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು 7ನೇ ದಿನ. ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂಬಿಗ್ ಸರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು
ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಾದಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ JS ದೊಡ್ಡಮನಿಸಿ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆದರದ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ AS ಕಾಂಬ್ಳೆ ಸರ್ ಅವರು ಇವತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಆದರದ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಆದರದ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಖಾ ಬೆಳಗ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆದರದ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ PT ರೋಡನ್ ಅವ್ರ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಆದರದ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಂಬುಳೆ ಅವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸತತ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಆದರದ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರಿವರೆನ್ನದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆದರದ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆದರದ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. धन्यवाद सर। थैंक यू। अब यहाँ सभी को फिर से एक बार स्वागत करते हुए प्रास्ताविक विचारों को मैं आपके सामने रखूंगी। प्रास्ताविक यानी इस कार्यक्रम की शुरुआती की दौर की कुछ झलकों को आपके सामने मैं रखना चाहूंगी। विशेष व्याख्यान माला का आयोजन के पीछे हमारा उद्देश्य कोविड-19 के कारण त्रस्त विद्यार्थियों को मोटिवेशन के साथ सभी विद्यार्थियों को एक सूत्र में बांधकर उनके मनोबल को दृढ़ करने का प्रयास रहा है। इससे विद्यार्थियों के द्वारा ही कार्यक्रम चलाना तथा विषय में विद्यार्थियों की सहभागिता और हमसे ज्यादा उत्साही वही निकले। भाषा साहित्य के इतने सारे विधाओं को देखने के बाद विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने की लालसा बढ़ती ही गई। हुआ यूं कि ये सिलसिला इतनी दीर्घ होगा ये पता ही नहीं चला। इसलिए डॉक्टर मंजुनाथ N अंबिग सर से भाषा की ज्ञान को ग्रहण करने की चाह हमारे मन में जागृत हुई। कम उम्र में औहदे पर रहे हैं सर हमें सभी को अपनी अमिट ज्ञान का परिचय देने के लिए लालायित है। हमारे रोडनर सर के मित्र सहपाठी रहे हैं। उनके कहने पर तुरंत हाँ कहे ये उनकी महानता है। हमारे साथ जुड़कर आपकी आतुरता और ज्ञान पिपासा पाने की इच्छा और उत्साह का हम सम्मान करते हैं। आपकी महानता, आपकी सादगी, मृदुभाषी, स्नेहजीवी डॉक्टर मंजुनाथ N अंबिग सर आपको इस सभा में स्वागत करती हूँ। फिर सर आपका यहाँ तहे दिल से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और यहाँ इस प्रास्ताविक के बाद मैं हमारे अनुज डॉक्टर VT रोडनर सर से अनुरोध करती हूँ कि वे यहाँ डॉक्टर मंजुनाथ N अंबिग सर जी का परिचय दे। कैसा था सर? शिक्षा जीवन को बढ़ाता जाए
सर आवाज कुछ नहीं, सभी छात्रों को अपना म्यूट करने के लिए बोलिए, केवल वही बात करेंगे तब ठीक रहता हो। सभी विद्यार्थियों से सभी मैं लोग- अनुरोध करती हूँ कि वो अपने माइक बंद कर लीजिएगा, सभी विद्यार्थी और सभी पार्टिसिपेंट जितने भी लोग हैं, केवल जो अभी बात करने वाले हैं वही अपना माइक ओपन रखें। सभी से अनुरोध है कि अपना माइक बंद करें। हर किस्सा जीवन संवारता जाए, मुसीबत में देखो दोस्ती याद आए, याद करो और दोस्तों आए नजर, दोस्तों ही जाने दोस्ती करो। ರೋಡನ ಸರ್ ಸೌಂಡ್ ಸರಿ ಬರ್ವಾತ್ರಿ आवाज बरತ್ತಿತ್ರಿ ವಿನೋದ್ ನಿಂದ ಆವಾಜ್ ಬರತೈತಿ हर किस्सा जीवन को संवारता जाए, मुसीबत में देखो दोस्ती याद आए, याद करो और दोस्त आए नजर, दोस्ती जाने दोस्त की कदर। अतिथि का संक्षिप्त परिचय। डॉक्टर मंजुनाथ एन नंदी जी का जन्म 1938 में कावूर कर्नाटक में हुआ। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा गांव से प्राप्त किया। बीए डिग्री भी स्थानीय अपने गांव के महाविद्यालय से प्राप्त किया। एमए 2002 में कर्नाटक विद्यालय से धारवाड़ में प्राप्त किया। पीएचडी 2006 में कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से। स्नातकोत्तर अनुवाद डिप्लोमा 2005 में कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से। स्नातकोत्तर अनुवाद डिप्लोमा इन ऑफिसर कॉरेस्पॉन्डेंस 2006 में कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से उन्होंने प्राप्त किया। डॉक्टर अम्बे जी का के निर्देशन में 13 शोधार्थी पीएचडी डिग्री प्राप्त कर चुके हैं एवं 20 शोधार्थी एमफिल डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। प्रकाशित कृतियां कन्नड़ में 8 पुस्तक एवं हिंदी भाषा के 6 कविताएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में 60 से भी ज्यादा शोधपरक आलेखों की प्रस्तुतिकरण उन्होंने की है। यहाँ पर उनके बारे में बताना बहुत ही कितना भी बताए कम है। यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार को मैंने समेटने की बात की है। साहित्य शिरोमणि खंडवा मध्य प्रदेश से, विद्यासागर भागलपुर बिहार से, रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार कलकत्ता से, साहित्य गरिमा श्री बालघाट मध्य प्रदेश से, भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर रिसर्च टैलेंट अवार्ड नागपुर महाराष्ट्र से, साहित्य गौरव पुरस्कार करनाल हरियाणा से, भारतीय राष्ट्र रत्न गौरव सम्मान पुणे महाराष्ट्र से, भारत गौरव पुरस्कार भागलपुर बिहार से, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जन मित्र पुरस्कार कोल्हापुर महाराष्ट्र से, काव्य रत्न पुरस्कार पंजाब से। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार इस प्रकार है। विश्व शांति अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार गोवा से, अंतरराष्ट्रीय लिटरेचर अवार्ड सातारा महाराष्ट्र से, आचार्य पुरस्कार सातारा महाराष्ट्र से, महात्मा गांधी नॉन वायलेंस और पीस अंतरराष्ट्रीय अवार्ड नागपुर महाराष्ट्र से इन्होंने प्राप्त किया। इनके बारे में हम जितना भी बताए बहुत कम है और कम समय में मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका इजाजत चाहता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर जी। तो अलग अलग संस्थाओं में सदस्यत्व संपादन मंडली जी के सलाह समिति के सदस्य लातूर, अध्यक्ष उत्तर कर्नाटक का जिला अम्बिक समुदाय कुमटा, संपादकीय मंडल के सदस्य शब्द विज्ञान त्रैमासिक पत्रिका नई दिल्ली, अध्यापन का अनुभव दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के पीएचडी विभाग में प्रवक्ता एवं रीडर तथा प्रोफेसर के रूप में 2000 से इस संस्था में कार्यरत है। धन्यवाद सर, आप यहाँ आए हमारा सौभाग्य है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु मुख्य अतिथि महोदय जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने अनमोल विचारों से हमें लाभान्वित करें। सर। आदरणीय सभी विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार। सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ सर, सुनाई दे रहा है सर। हाँ। सुनाई दे रहा। आदरणीय सभी विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार। सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर शिक्षण संस्था के बी शंकरानंद कला तथा वाणिज्य महाविद्यालय कुर्ची और इस कला महाविद्यालय के प्राचार्य AS कांबळे जी, समारोह के अध्यक्ष JS दोडमनी जी, विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेखा अशोक जी,
सहायक प्राध्यापक वीटी रोडन्नवर जी, प्राध्यापक ML कज्जीगोणी सर जी और सभी प्यारे छात्रों, बहुत ही खुशी हुई। लेकिन कोरोना ने सबको ऐसे हालत में बना दिया कि इंटरनेट के माध्यम से ही सबका चेहरा देखने का मौका बना दिया। दूर से अपनत्व को साधने का कार्य हमें प्राप्त हो रहा है। एक तरह से कोरोना को धन्यवाद देना, दूसरे तरह से लेकिन ये अपने लोगों से दूर जाने की एक दुख भी हमें लगता है। सुरेखा मैडम जी के हिंदी सुनते ही मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि इतनी सुरीली भाषा में जो है, मैं कल भी सुना, कल भी मुझे मौका मिला था ऐसे ही सुमन मैडम आई तो वो बहुत ही हम गौरव महसूस करते हैं उसको, इसलिए उस समय में भी मैं ओपन करके देखा था। जो इस प्रकार के, देखिए अहिंदी भाषी होते हुए भी इतनी मधुर मीठी हिंदी भाषा में बोलने की जो शक्ति हमें हिंदी ही देती है, हिंदी ही देती है। और उसमें ये तो खिलाड़ी है हमारे विनोद रोडन्नवर जी, मेरे घनिष्ठ मित्र है। हम एक वचन के फ्रेंड है, दो वचन के नहीं बहुवचन के नहीं है, एक वचन के दोस्त है। और उनकी दोस्ती ने मुझे आज यहाँ तक इस कॉलेज में मुझे कुछ अपने विचार को व्यक्त करने के लिए, अपनत्व को संबोधित करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए मौका प्रदान किया। कल परसों वो फोन करते ही मैं हाँ कह दिया। उसमें मुझे टाइम, एक्चुअली मुझे इसके बाद भी कोचिन यूनिवर्सिटी का एक मीटिंग है, उसमें भी अभी टाइम हो गया। मैं फिर भी जितना संभव होता है उतना समेटने के लिए कोशिश करूंगा। जो मुझे इस कॉलेज वालों को मैं धन्यवाद दूंगा जो मुझे आमंत्रित किया, और रोडन्नवर जी को भी मैं आशीष प्रदान करता हूं, और प्रेम भरा जो ये मुझे संबोधन करने के लिए मौका दिया उसको भी उनको भी धन्यवाद देता हूं। कहा जाता है श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है। यह तीनों मिलने पर इंसान को सब जगह सम्मान देती है। हम इसलिए अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, जो है हमें श्रद्धा की आवश्यकता है, नम्रता की आवश्यकता है और योग्यता की आवश्यकता है। जब हम योग्यता को स्थापित कर लेते हैं तब हमें सब कुछ मिल जाता है। लेकिन आजकल मैं गांव गया तो वहां के युवा लोग, अभी जापान में पूरे बूढ़े लोग हैं लेकिन फिर भी वहां पे बहुत सारे संशोधन हो रहा है। लेकिन भारत में इतने युवा लोग हैं, विवेकानंद जी ने भी युवा लोगों को इतना संबोधित किया, अगर संसार में युवा लोग हैं तो पूरे संसार को बदलने की शक्ति है। वही युवा लोग आज नौकरी के बिना, कार्य के बिना, शिक्षा के बिना घर में बैठने के लिए मजबूर बन गए हैं। ये अत्यंत दुखद विचार है। ये कोरोना काल के कारण से हुआ है। ये इसको, लेकिन इससे दुखित होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे हाथ में पूरे विश्व है, हमारे हाथ में मोबाइल है, लेकिन पूरे विश्व है। ज्यादा से ज्यादा ज्ञान उसमें भरा पड़ा है, जो हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, सभी भाषा का हो, है ना। जो पूरे देश में 4000 भाषाएं बोली जाती है, 4000 भाषाएं पूरे विश्व में बोली जाती है। उस भाषा में हिंदी अपने पूरे देश को प्यारी बन जाती है तो कितना हमें गौरव महसूस करना होगा। लेकिन देशवासियों ने इसको बहुत ही विरोध किया। मैं इसलिए हिंदी कविता में, अपने कविता में बता दिया, देशियों ने हिंदी को द्वेष किया, विदेशियों ने हिंदी को पास किया। देशी नहीं जानते हिंदी के शान, विदेशी जानते हैं इसके पहचान। हिंदी के पहचान को विदेशी लोग पहचानते हैं, हिंदी को जानते हैं, उनको मालूम है हिंदी क्या है, हिंदी कैसी भाषा है। ये व्यापारी भाषा है, हिंदी व्यापारी भाषा है। भारतीय परिवार से जो निकली हुई भाषा है। ईरानी लोगों ने पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया, भारतवासियों ने नहीं किया, ईरानी लोगों ने किया। जो सिंधु नदी के तट पर हिंदू लोग वास करते थे, रहते थे, लेकिन उनको हिंदू बोलना नहीं आता था, हिंदवी
हिंदी ऐसे परिवर्तित करके भाषा के रूप में जो हिंदी उनकी भाषा को जो है हिंदी भाषा के रूप में संबोधित करने का जो कार्य किया, ये अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। और बात यह है क्यों हम हिंदी को इतना पसंद करते हैं, क्या कारण है, और हिंदी को हमें इतना दूर तक ले जाने की क्या आवश्यकता है, और हिंदी पढ़ने से हमें क्या क्या लाभ होगा। अभी आज बच्चों के मन में एक शंका है, हिंदी पढ़ने से क्या मिलेगा, हिंदी पढ़ने से हमें भविष्य है या नहीं। ये सारी बातें जो है हमारे दिमाग में बैठ गया है, लेकिन हमारे दिमाग से इसको दूर करना चाहिए। हिंदी विश्व की भाषा है, भारत की वाणी है, विश्व की रानी है हिंदी। मैं अपनी कविता में भी बता दिया, ये भारत की वाणी है और विश्व की रानी है। ये विश्व की रानी है, विश्व में राज करने वाली जो भाषा है। ये विश्व में क्यों राज कर रही है, कारण ये है, आज कन्नड़ का हो, तमिल का हो, तेलुगु का हो, इन सबसे ज्यादा हिंदी फिल्म पूरे विश्व में चलती है। कोई भी विश्व ऐसा नहीं है कि हिंदी फिल्म को बिना देखे बैठने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग देखते हैं। लेकिन हमें दुख ये होता है, देशियों ने इसको द्वेष किया, भारतवासियों ने इसका विरोध कर रहे हैं। अभी पहले तमिलनाडु में हिंदी को विरोध किया, तमिल वालों ने, जो रिक्शा वाले कोई भी बात नहीं करते थे, हिंदी में बात करना एक प्रकार से हमारी भाषा को दूर करना ऐसे समझते थे, लेकिन तमिलियों में वो दूर हो गया। अभी सभी रिक्शा वाले हिंदी में बात कर रहे हैं। मैं अभी तमिलनाडु में हूं और 4 सेंटर में, हमारे दक्षिण में 4 सेंटर है, उस सेंटर में तमिलनाडु में कितना हिंदी का एडमिशन होता है उतना किसी भी राज्य में नहीं होता। न तो कर्नाटक में हो रहा है, न तो केरल में हो रहा है, न तो आंध्र में हो रहा है। यानी लोगों के मन कितना परिवर्तित हो गया ये देखिए। हिंदी भाषा में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, जो वो भाषा मधुर है और सुरीली है और पूरे लोगों को अपने ओर आकर्षित करने की ताकत है। भाषा में ये ताकत हमेशा होनी चाहिए। जिस भाषा में लोगों को आकर्षित करने की जो ताकत होती है, वही भाषा विश्व में आज प्रसार। हिंदी भाषा को स्वीकार करने की कोई तरीका नहीं थी। और एक बात यह है, हिंदी भाषा जो है एक प्रकार से मधुर ही नहीं है, लेकिन उसके व्याकरणिक दृष्टि से भी हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं। अंग्रेजी भाषा की तरह नहीं है। हम जिस प्रकार से हिंदी में उच्चारण करते हैं, बात करते हैं, उसी को लिखते हैं, इसलिए वो आसान भी हो जाता है, लोगों को सीखने के दृष्टि से भी आसान हो जाता है। और दक्षिण में हिंदी को प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी जी ने 1918 में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की, क्योंकि पूरे भारत देश को एक सूत्र में बांधना है। अलग अलग भाषा को अलग अलग मोती के रूप में मानते हुए सभी मोती को एक धागा चाहिए। कौन सा धागा है? वो हिंदी रूपी धागा के माध्यम से सभी मोती को एक माला के रूप में बनाने का जो कार्य दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के स्थापना के माध्यम से गांधी जी ने किया। और उनका उद्देश्य ये था, दक्षिण और उत्तर में जो भेद है उस भेद को मिटाना। दक्षिण वाले भी, आज बहुत खुशी से मैं बता दूंगा, हम जितना व्याकरणबद्ध भाषा का उच्चारण करते हैं उतना उत्तर वाले नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे सेमिनारों में हमने उनको टक्कर दिया, लेकिन आप व्याकरणबद्ध भाषा का उच्चारण नहीं करते हैं, बोलचाल की भाषा का उच्चारण करते हैं। लेकिन दक्षिण वाले ऐसे व्याकरणबद्ध भाषा का, लिंगबद्ध भाषा का, यानी समृद्ध भाषा का उच्चारण करते हैं। ये दक्षिण वालों की बहुत खासियत है। और एक बात ध्यान में रखिए, उत्तर प्रदेश के जो लोगों में जो भाषा के प्रति जो श्रद्धा है वो केवल हिंदी के प्रति, न तो वो अंग्रेजी में है और दूसरी भाषा को सीखने में है। उदाहरण के लिए मेरे साथ जो 2 लोग काम किए बनारस से, 15 साल हो गया, अब तक वो एक ही भाषा नहीं सीख पाए। मलयालम में भी 1-2 शब्द को बात करते, 1-2 शब्दों में बात करते हैं, लेकिन मैं
तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, कोंकणी, हिंदी, अंग्रेजी, इतनी भाषाओं को सीखने के लिए कोशिश किया। उस भाषा में मैं बात कर रहा हूं। यानी गौरव की बात यह है कि हमें भाषा सीखने में बहुत आसानी से हम सीख लेते हैं। इसलिए सभी को भाषा सीखने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। लेकिन कर्नाटक में इतना विरोध हुआ इस बार, बेंगलुरु में हुआ और हुबली में हुआ, बहुत जगह पर जो हिंदी को लेकर हम अपने खून को बहाएंगे लेकिन हिंदी की स्थापना नहीं होने देंगे। यानी ये अत्यंत दुखद विषय है। क्योंकि इसलिए दुखद विषय है कि हिंदी एक भाषा है, समृद्ध भाषा है। एक हिंदी भाषा को सीखने से पूरे विश्व में आदमी कर सकता है। इतना होते हुए भी कन्नड़ भाषा को लेके मैं विदेश में गए तो मुझे इतनी तकलीफ होगी कि कन्नड़ को जानने वाले वहां नहीं रहेंगे। केवल कर्नाटक तक कन्नड़ सीमित रहेगा, केवल तमिलनाडु तक तमिल सीमित रहेगी। बहुत खुशी हो रही है। सप्त व्याख्यान माला, 7 व्याख्यान माला को आप लोगों ने इस संदर्भ में बच्चों के लिए दिया, ये अत्यंत गौरव की बात है ना। सुरेखा जी हो, रोडनवर जी हो, सब लोगों के संयुक्त तत्वाधान में 7 व्याख्यान मालाओं को बच्चों को देने के माध्यम से बच्चों में जो एक प्रकार से, मैडम भी बोली अभी सुरेखा मैडम, नहीं हम बच्चों को धैर्य देना चाहते हैं। सही है, असल में हमें भाषा से भी ज्यादा बच्चों को धैर्य बढ़ाने की शक्ति है। कल ही मेरी बहन की बेटी से मैं बात किया तो बहुत ही दुख लगा मुझे। अभी वो एक कॉलेज में काम कर रही थी, अभी कॉलेज बंद है और वो बोल रही है नहीं मैं किसी गारमेंट में जाऊंगी, मुझे 20,000 रुपए मिलेगा तो मुझे खाने के लिए तो पैसे चाहिए ना। यानी कितने हताश हो गए हैं बच्चे। बच्चों के पास पैसे की समस्या है, परिवार में पैसों की समस्या है। ये कोरोना काल के संदर्भ में चलते बहुत बच्चे हताश हो गए हैं। और एक बात ध्यान में रखिए, हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दिन रात की खेल है। दिन होने के बाद रात आएगी ही, रात होने के बाद दिन आएगी ही। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि दिन रातों में अंतर हो सकता है लेकिन दिन आएगा ही। लेकिन उस दिन के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। हमारे मानसिक स्तर को कहीं भी गिरने नहीं देना है। अभी अपने आप को बिल्डअप कर लेना चाहिए, अपने आप को जो है एक स्थिरता प्रदान करना चाहिए। भाषा की दृष्टि से हो, साहित्य की दृष्टि से हो, सभी सुविधाएं आजकल जो मोबाइल में है, हिंदी में भी आपको भाषण मिलेगा, हिंदी में भी अभी क्लास को गए बिना भी आप यूट्यूब में बहुत सारे चीज मिल रहा है। लेकिन हमारे बच्चे जो है इससे अलग तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं। करने की जरूरत नहीं है। सभी प्रकार से आपको भाषा को लेकर हो, साहित्य को लेकर हो, लेकिन उसका उपयोग कीजिए। उसका उपयोग करने से क्या है, हम आपके मनोबल बढ़ जाएगा और मनोबल के साथ साथ जो है आपको आप में जिज्ञासा बढ़ जाएगी। केवल कॉलेज को जाने से ही आप आप पढ़ सकते। इतना प्रयास करके गूगल मीट में कार्यक्रम करना कितना कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। आज मैं बैठे आप लोगों की स्थिति को देख के मुझे बहुत ही दर्द हुआ। आप कितना संघर्ष कर रहे थे, वो नहीं आए, ये नहीं आए, उनको बुला, नहीं, कितना संघर्ष है। अगर क्लास में बच्चे बैठते हैं तो ये सारे संघर्ष नहीं रहता। हम सीधा सीधा उनको डांटते थे, ये करते थे, फटकारते थे, लेकिन वो सभी सुविधा कट गई है। समय कैसे रहता है उस प्रकार से उसको उपयोग करने के लिए हमें आना चाहिए।
सबसे बढ़कर। ये समय ऐसे आ गया, मैं ऐसे हो गया, ये वो हताश होने की जरूरत नहीं है। हमारे मानसिक स्तर को बल देना चाहिए, हमारे मानसिक स्तर को बल देना चाहिए। साहित्य को पढ़ना चाहिए। साहित्य में कितने नीतिपरक विचार नहीं है। हिंदी साहित्य समृद्ध साहित्य है। कबीरदास के साहित्य को पढ़िए, सूरदास जी के साहित्य को पढ़िए, तुलसीदास जी के साहित्य को पढ़िए। तुलसीदास जी के साहित्य में रामचरित जो मानस है, अत्यंत सुंदर साहित्यिक कृति के रूप में हम मानते हैं। जो रामचरित मानस काव्य को पढ़े तो हमारे मन में ऐसे भावना आती है, किस प्रकार से एक बेटे को अपने पिता को गौरव देना चाहिए। राम जैसा बेटा है, उस बेटे का क्या कर्तव्य बनता है पिता को लेकर, वो हमें मालूम हो जाता है। लक्ष्मण जैसे भैया होने से उस संसार का क्या कितना गौरव प्रदान होता है। उर्मिला जैसे, सीता माता तो राम के साथ गई, लेकिन उर्मिला अपने पूरे परिवार को रक्षा करने के लिए, पूरे परिवार को बचाने के लिए लक्ष्मण से बोलती है, आप जाकर आओ, मैं यहीं रहूंगी, लेकिन सीता माता तो राम के साथ रहेगी और उन दोनों के रक्षा के लिए आप जाएंगे, लेकिन यहां परिवार को रक्षा करने के लिए कौन है। देखिए, नीति तत्व इतने सारे हमारे साहित्य में भरे पड़े हैं, लेकिन उसको पढ़ने की जरूरत है, उसे पढ़ने की जरूरत है, उसे आस्वादन करने की जरूरत है। हिंदी साहित्य समृद्ध साहित्य। प्रेमचंद जी एक संदर्भ में बात करते हैं, बता देते हैं, जितना हम अध्ययन करते हैं उतना हमारे मन में सहनशीलता आनी चाहिए। जितना हम अध्ययन करते, केवल अध्ययन करना बड़ी बात नहीं है, सर्टिफिकेट लेना बड़ी बात नहीं है, उस अध्ययन के साथ साथ हमारे मन में जो एक प्रकार से ज्ञान होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। ये सारे बातों को हम हिंदी साहित्य से भी अध्ययन कर सकते हैं, पा सकते हैं, लेकिन हमें उसे अध्ययन करने की जरूरत है। और हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या पढ़ते हैं मालूम नहीं है। इसलिए कबीरदास जी ने बोला, पोती पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित बयान कोई, दाई आकर प्रेम से पढ़ई सो पंडित होई। प्रेम से पढ़ो भैया, 2 शब्द ही पढ़ो, प्रेम से पढ़ो। प्रेम से पढ़ने से आपके मन को लगेगा, आप उस अध्ययन के माध्यम से पूरे विश्व को जीत लेंगे। पूरे विश्व को जीतने की शक्ति आपको हासिल होगी। अगर अन्यथा आप प्रेम से नहीं पढ़ेंगे, आपके दिमाग में नहीं आएगा, और जो दिमाग में नहीं आता है तो वो इसका किसी भी कारण से लाभ नहीं होता है। और कहा जाता है, पढ़ाने वाले शिक्षक को भी ऐसे होना चाहिए, उनको दिल तक, उनके हृदय तक पहुंचने की शक्ति होनी चाहिए। आदमी का दिमाग छोटा होता है और उसमें आप कितना बोलते हैं, ज्यादा बोलेंगे तो सर दर्द होता है। आप लोगों ने महसूस किया होगा, ज्यादा बोले तो सर दर्द होना शुरू होता है। अगर हृदय को टच करने वाली बात बोलेंगे तो हृदय कभी भी थकता नहीं है। अगर हृदय थक गया, इंसान गया। अगर हृदय थकेगा तो इंसान चला गया। इसलिए जो है, कोई भी बात हो, साहित्य हो, संगीत हो, नृत्य हो, कोई भी बात हो, उसको ध्यान से हमें सुनना चाहिए, ध्यान से अध्ययन करना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए, प्रेम से पढ़ना चाहिए, और उसको हमें आगे भविष्य के लिए भी उसका उपयोग करना चाहिए, हर चीज के संदर्भ में। उसमें हिंदी साहित्य में ज्ञान है, विज्ञान है, भक्ति है, विरक्ति है, शक्ति है, सब कुछ है, प्रेम है। सबसे बढ़कर जो प्रेम के गीत को मलिक मोहम्मद जैसी जी ने पद्मावत नामक काव्य की रचना करने के माध्यम से पूरे संसार को, है ना, प्रेम की क्या संकल्पना होती है उसको समझाने के लिए कोशिश किया। भक्ति काव्य के संदर्भ में तुलसीदास जी ने रामचंद्र कृपालु बजुमन भवन हरण भव भय धारुणम, जो है, अगर आप श्री राम की भजन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, आपके सारे दुख को दूर करने की शक्ति उस श्री राम की भक्ति में है। बोलने के माध्यम से लोगों को सांत्वना देते हैं।
ऐसे बहुत सारे जो कविताएं जो है। और परसों मैं निर्मल वालिया जी के एक कविता में जो एक कविता में 2 स्टांजा को पढ़ा, वहां पे इतनी दरिद्रता, दर्दनाक व्यवस्था को उन्होंने चित्रित किया। बहुत ही दुखद घटना के संदर्भ में मैंने महसूस किया। हे भैया 5 है, उसमें से 1 को खरीद लो, 4 का जीवन बन जाएगा। यानी एक 5 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चे को खरीद लो, 4 लोगों का जीवन बन जाएगा। मतलब इंसान किस हालत में आया है, किस दर्द वेदना से जूझ रहा है, वो ये भुक्त भोगी स्थिति है, जीवन की स्थिति है। लेकिन उस दृष्टि से देखें तो आज के जमाने में खाने के लिए हमें कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन प्रगति काल के संदर्भ में जो है इस प्रकार की व्यवस्था को बाप बेटे को बेचता है, पूरे संसार देखते रहता है। प्रगतिवादी कवि जो है चित्रित करता है, बाप बेटे को बेचता है, पूरे संसार देखते रहता है। यानी एक बाप अपने बेटे को बेचने के लिए मजबूर हो जाता है, तो कितनी गरीबी थी। अब कोरोना काल में भी उतनी गरीबी नहीं है। मोदी जी के साम्राज्य में जो है पूरे लोगों को फ्री रेशन मिल रहा है, खाने के लिए कोई कमी नहीं है, एटलीस्ट 2 वक्त का खाना तो खा रहे हैं। लेकिन प्रगतिवादी उस समय में जो प्लेग आया, लोगों को खाने के लिए तरस रहे थे, बहुत कष्ट झेल रहे थे। लेकिन उतने कष्ट तो अभी नहीं है, लेकिन लोग समझ रहे हैं बहुत कष्ट आया कुछ लोगों को कष्ट आया, वो बात अलग है। लेकिन कष्ट ही बोल के हम जीवन यापन करने से न तो हम साहित्य को पढ़ते हैं, न तो साउंड बर्बाद रही मैडम जी। मॉल में जाके सभी सामान को खरीदते थे, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है। मॉल में जाके खरीदने की स्थिति नहीं है। अभी हर घर के पास जो तरकारी बेचने वाले आते हैं, हमने कब सोचा कि घर के पास आने वाले गाड़ी में लेने के लिए सोचा? नहीं सोचा हमने। हम अमीर जाना है, वहां पे इतना लाइटिंग्स रहता है, उसको 10 रुपए के बदले में 20 रुपए में बेचते हैं, उसको खरीदते थे। लेकिन एक बार सोचो, हम बच्चों को या परिवार वालों को सभी को सोचना चाहिए कि वो गरीब एक बूढ़ा इंसान अपने जीवन के खाना खाने के लिए नहीं है बोल के बेच रहा है, उसको खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। अभी कोई भी मॉल में नहीं जा रहा है, सभी मॉल बंद है, केवल गाड़ी वाला ही आज बेचेगा। यानी संसार में कोरोना ने बहुत सारे चीजों को सिखाया। बहुत लोग हाथ ही नहीं धोते थे, लुंगी में ऐसे उसको हाथ पैर के चले जाके खाने के लिए बैठते थे, मजबूर कर दिया पूरे दिन आप हाथ धोते रहो। और कुछ लोग अपनी सुंदरता के कारण से हम इतने सुंदर है उतने सुंदर है, अभी कोरोना बोल दिया आपका मुंह बंद कर दो नहीं तो मैं अंदर प्रवेश कर लूंगी। देखिए संसार जो अच्छा होता है बुरा भी होता है। यानी इससे बहुत लोगों ने नीति को सीखा, न्याय को सीखा, समृद्धि को सीखा है। और उसमें हमें भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि हर चीज अच्छे के लिए होता, बुरे के लिए होता है, लेकिन हमें अपने दृढ़ विश्वास को कभी भी खोना नहीं चाहिए। कोरोना के संदर्भ में भी एक कविता है, 1-2 स्टांजा मैं बताने के अभी आप लोगों को सुनाऊंगा। क्या आया कोरोना पूरे विश्व को डराया, क्या आया कोरोना पूरे विश्व को डराया, सपनों में भी आया अपनों में भी आया। कितने दिन सपने नहीं देखे आप लोग? कोरोना वाला आपके पास बैठा या कोई आके कोरोना वाला आपसे बात करने के लिए कोशिश कर, आप डर के इतने भाग गए, सोने से उठ गए। अपने में भी आया, सबको समता का पाठ पढ़ाया, वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाया। सबको समता का, समान है, अमीर मरे गरीब मरे कोई नहीं जाता है ना। सबको समता का पाठ पढ़ाया, वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाया, बहुतों का होश ही उड़ा दिया। बहुत लोग ऐसे हो गए हैं कि अब कब आएगा हम मरेंगे बोल के इतना होश उड़ गए।
कितनों को वार किया, बहुतों को संहार किया, बहुत लोगों को संहार किया कोरोना। अमीर गरीबी का भेद मिटाया, सबके मुंह को बंद कराया, सबके मुंह बंद करा दिया। मैं सुंदर हूं, मैं गरीब, मैं काला हूं, गोरा हूं, कुछ भी नहीं है, सबका मुंह बंद है। कौन है दिखाई नहीं दे रहा है। मुंह ओपन किए तो हाँ ये अपना आदमी है दिखता है, नहीं है तो वो भी नहीं दिखता है। ऐसे स्थिति आ गया। अपनों को भी डरा, अपनों को भी दूर किया, सपनों को भी चूर किया। हमारा सपना आज चूर चूर हो गया। कभी कभार ऐसे लग रहा है पूरे संसार नष्ट हो रहा है, हम इस संसार को कैसे बचाएंगे। अभी जीवन के अभिशाप हेतु, मृत्यु के बाप हेतु कितना चला आपका चाल, टीका ने कराया आपको बेहाल। ज्यादा नहीं चलता दुष्टों का वार, शिष्टों का आया है संसार। ये भारत देश शिष्टों का संसार है। ये भारत देश में हिंदी जैसी भाषा एक समृद्ध भाषा के रूप में स्थापित हुई है। उसमें ज्ञान है, विज्ञान है, संगीत है, नृत्य है, सब कुछ है। और हिंदी भाषा को अध्ययन करने से शिक्षक बन सकते हैं, हिंदी ऑफिसर बन सकते हैं। और मीडिया में जो है इतना ऑफर आपको मिलेगा, अगर आप ढंग से हिंदी में बात करने के लिए कोशिश करते हैं तो आपको एंकर बनने की भी मौका मिलेगी। और एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट के टंडा टंडा कूल कूल, एक ही शब्द है, दो शब्द है, उसको बनाने के लिए करोड़ों रुपए लोगों ने हासिल किया। ये क्यों किया बोले तो हिंदी की शक्ति है, लेकिन ज्यादा उसमें क्या है, टंडा टंडा कूल कूल ऐसे शब्द बना दिया। लेकिन भाषा के साथ हमें खेलने के लिए आना चाहिए। हम भाषा के साथ खेलते नहीं हैं। भाषा का उपयोग उस दृष्टि से करने के लिए हमें मौका मिलना चाहिए, हमें उस मौके को बना लेना चाहिए। लेकिन हम भाषा के साथ खेलते नहीं हैं। और भाषा के साथ खेलने से केवल एडवर्टाइजमेंट नहीं बनता है, कविता बनती है, कहानी लिख सकते हैं, उपन्यास को लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन वो मन हमारे होना चाहिए, उस मन को हमें बना लेना चाहिए। अगर नहीं बनाते हैं उससे कोई लाभ नहीं है। और हिंदी साहित्य आपको आध्यात्म का भी ध्यान देता है, अध्यात्म का भी ध्यान देता है, लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, बहुत कम, केवल परीक्षा के लिए ही पढ़ते हैं। अध्यात्म के दृष्टि से कबीरदास जी के दोहे, जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, टूटा कुंभ जल जल ही समा। इस संसार रूपी सागर में इंसान खड़ा हुआ है, उनके अंदर भी आत्मा है, बाहर भी परमात्मा समाया हुआ है। अगर ये कुंभ रूपी इंसान अगर मर जाता है, आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, क्योंकि परमात्मा से मिलने से वो शाश्वत हो जाता है। देखिए कितने मधुर भाषा को, बात को उन्होंने बताया। लेकिन अपने जीवन में भी इस प्रकार के विचार को हम अपनाने से, बहुत सारे नीति तत्वों को भी उन्होंने बोला। ऐसे कस्तूरी कुंडल बसई मृगडुंडे बनमाही, ऐसे गरी गरी राम है दुनिया देखो नहीं। हिंदी भाषा के संदर्भ में हम यही कर रहे हैं। भाषा हिंदी भाषा को सीखने से हम पूरे विश्व में जाकर क्या है, कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। पोती पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित बयाना कोई, सॉरी, कस्तूरी कुंडल बसई मृगढूंडे बनमाही, ऐसे गरी गरी राम है दुनिया देखो नहीं। परमात्मा के संदर्भ में उन्होंने बोला, कस्तूरी के मृग के नाभि में ही घूमते अज्ञान के कारण से। हमारे मन में भी एक ऐसा शक्ति है सभी को ग्रहण करने की, सभी को चाहने की, सभी को स्थापित करने की शक्ति हमारे हृदय में है, लेकिन हम कभी उसको स्थापित करने के लिए कोशिश है। कविता लिखने
प्रयास करना चाहिए। कोई भी चीज हो, प्रयास के बिना कोई भी चीज हमें उपलब्ध नहीं हो पाता है। लेकिन एक बार प्रयास करके देखिए, कोई भी अपने आसपास के वातावरण को देखिए, उस वातावरण में किस प्रकार के विचारधारा है, उन सारे हम कभी भी महसूस नहीं कर पाते हैं। करने के विदेशों में 25 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। कम से कम उनके बजट में इतना एक 10, 15, 20, 25% पैसे हिंदी का अध्ययन अध्यापन के लिए विदेशी लोग रख रहे हैं। इसका कारण क्या है बोले तो हिंदी भाषा व्यापारिक लोग उसको को इस प्रकार इस भाषा को आना बहुत जरूरी है। हिंदी भाषा आना बहुत जरूरी है। लेकिन कहा जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर, हिंदी हमारे लिए वही बन गई है। लेकिन विदेशी लोगों को मालूम है, इसका पहचान मालूम है जो हिंदी इस प्रकार की है। इसलिए जो है विदेशी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा अपना रहे हैं। और हिंदी की वर्णमाला दुनिया की सर्वाधिक व्यवस्थित वर्णमाला है। दुनिया की सर्वाधिक व्यवस्थित वर्णमाला है। इसमें स्वरों और व्यंजनों अलग अलग व्यवस्थित, उनको अलग अलग रूप में व्यवस्थित रूप में किया गया है। और इसमें हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि के रूप में माना जाता है। और इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित लिपि चिन्ह का प्रयोग होता है प्रत्येक। और संबंध के लिए अभी अंग्रेजी में क्या होता है, अंकल बोल के बता देते हैं। अंकल शब्द का प्रयोग सभी, पिताजी को छोड़ के बाकी सभी लोगों के लिए अंकल शब्द का प्रयोग। रास्ते में जाने वालों को भी अंकल ही बोलते हैं। अंकल और आंटी शब्द जो अंग्रेजी में होता है वो केवल एक दो आदमी के लिए नहीं है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। अंकल के लिए चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, ऐसे अलग अलग संबंध के लिए अलग अलग शब्दों का जो प्रयोग हम करते हैं। लेकिन हिंदी के लिए करते हैं अंग्रेजी में एक दो शब्द में पूरे विश्व को समेटने का कार्य करते हैं। और हिंदी वर्णमाला ध्वन्यात्मक वर्णमाला है जिसमें हर ध्वनि के लिए लिपि चिन्ह है। और इस प्रकार यह इतनी सामर्थ्यवान भाषा है कि हम जो कुछ भी बोल सकते हैं वह सब हिंदी में लिख भी सकते हैं। जो भी बोलते हैं उसको हिंदी में ही हम लिखते हैं। हिंदी का शब्दकोश बहुत विशाल है, जहां एक एक वस्तु, कार्य, भाव आदि को व्यक्त करने के लिए सैकड़ों शब्द विद्यमान हैं। हिंदी में सैकड़ों शब्द विद्यमान हैं, लेकिन उसे हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है। डिक्शनरी को पढ़ने की आवश्यकता है, बनाने की आवश्यकता है। हिंदी भाषा की विशेषता ये भी है कि इसने अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने में कभी कोई संकोच नहीं किया। इसमें अरबी फारसी का शब्द मिलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी का शब्द को भी आजकल कोड मिश्रण के रूप में उसमें जोड़ रहे हैं। और बीच बीच में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल भी हम हिंदी भाषा में जो कर रहे हैं उसको भी अभी मान्यता प्राप्त हो रही है, ऐसे चीजों के संदर्भ में, अन्य भाषा के संदर्भ में। और हिंदी एक ऐसी नदी है कि जिस प्रदेश में बहती है उस प्रदेश की मिट्टी का गंध को अपने साथ लेकर चलती है। उस प्रदेश के मिट्टी का गंध को अपने साथ लेकर चलने वाली जो हिंदी भाषा है, उदाहरण के लिए कर्नाटक में आती है, कन्नड़ का प्रभाव उस पर होता है, आंध्रा में चली जाती है, तेलुगु का प्रभाव उसमें चला जाता है, तमिलनाडु में आती है, तमिलनाडु का प्रभाव आता है, केरल में जो हिंदी का उच्चारण होता है, मलयालम का जो प्रभाव उसमें आ जाता है।
लेकिन उसको गलत नहीं समझेंगे, लेकिन उस भाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा को भी जोड़ने का जो कार्य हिंदी भाषा करती है, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण बातों के संदर्भ में हम देखते हैं। और पूरे विश्व में हिंदी फिल्मों के प्रचुरता के संदर्भ में हम देखते हैं कि आज हिंदी को ज्यादा लोग देखने का और पढ़ने का और सीखने का उद्देश्य है हिंदी सीरियल देखना और हिंदी फिल्म देखना। और ऐसे चीजों में जो है आज के कल शहरों में ज्यादा लोगों के घर में जो है हिंदी सीरियल ही चलता है, क्योंकि लोगों को वो सुरीली भाषा के रूप में, मधुर भाषा के रूप में आकर्षित करने की शक्ति उसमें है। हिंदी एक व्यावहारिक भाषा है, इसमें अंग्रेजी की भांति कई रिश्तों के लिए एक ही शब्द से ज्यादा शब्दों का प्रयोग होता है। और हिंदी आज दुनिया की दूसरे सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के संदर्भ में हम देखते हैं। ये उसके पूरे आंकड़े के संदर्भ में बोलना है तो 1,02,25,10,352 लोग जो है हिंदी का उच्चारण कर रहे हैं। अभी चीनी भाषा पहले ज्यादा बोलते हैं बोल के समझे थे, लेकिन आंकड़े के संदर्भ में 90,04,00,000 लोग ही मात्र जो चीनी भाषा को बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा द्वितीय भाषा के रूप में जो है हिंदी को हम मानते आए हैं, और ज्यादा दिन नहीं है जो हिंदी को पूरे विश्व में नंबर 1 भाषा के रूप में स्थापित होने की स्थिति है। लेकिन दुखद बात यह है, हिंदी राजभाषा बनी। राजभाषा बनने का उद्देश्य ये था कि पूरे राज्य में कार्यों में अगर हिंदी आएगी तो लोग तो धीरे धीरे इसको सीख पाएंगे, लेकिन लोग नहीं सीख पाए। बहुत सारे राजभाषा कार्यालयों में हम देखते हैं, लेकिन लोग हिंदी को यथावत उस क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ ही काम करने के लिए कोशिश करते हैं। मात्र नाम मात्र के लिए मात्र उसको क्षेत्रीय हिंदी ऑफिसर के रूप में वहां स्थापित होने के कार्य को हम देखते आए हैं, लेकिन इसमें भी बदलाव आना चाहिए। और एक बात यह है, हमारे हिंदी प्राध्यापकों में भी एक इच्छा जागृत होनी चाहिए कि हिंदी को हमें स्थापित करने के लिए किस प्रकार से इसका प्रसार प्रचार करें। और भी जरूरत है, अभी पूरे विश्व में हिंदी फैलने के बाद भी भारत में इसके प्रचार प्रसार की और भी जरूरत है। इसलिए है कि लोगों के मन में हिंदी के प्रति, हिंदी पढ़ने से ज्यादा नौकरी नहीं मिलती है, कुछ ही नौकरी पा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे में हिंदी ऑफिसर बन सकते हैं, बैंक में हिंदी ऑफिसर बन सकते हैं, सभी सेंट्रल डिपार्टमेंट में जो है हिंदी ऑफिसर के रूप में बन सकते हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी ऑफिसर का पद आजकल नियुक्त हो रहे हैं। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक ध्यान में रखना चाहिए, बीए में अगर ऑप्शनल हिंदी आप रखते हैं तो उसके साथ साथ, ऑप्शनल हो बेसिक हो, उसके साथ साथ जो है अनुवाद डिप्लोमा एक कर लेना आपको आवश्यक होगा। उसके साथ साथ आप हिंदी ऑफिसर बन सकते हैं, या प्राइमरी का, हाई स्कूल का टीचर बन सकते हैं, और जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बन सकते हैं एमए करने से, और पीएचडी करने से विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में भी आप प्रोफेसर बन सकते हैं। इस प्रकार के कार्य से जो है हिंदी एक समृद्ध भाषा के रूप में पूरे विश्व में फैली हुई है। लेकिन हमें और एक बात आप लोगों के दिमाग में एक बात होगी, नहीं अभी इतने लोग हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, सबको नौकरी मिलेगी क्या? हिंदी पढ़ने वाले घर में बैठे हैं। एक बात ध्यान में रखिए, जो कार्य करता है, जो मेहनत करता है, जो पढ़ता है, जो उसको अपना लेता है, उन्हीं को मात्र नौकरी मिलती है। ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी भाषा हो, केवल हिंदी नहीं है, कन्नड़ भी है। कन्नड़ में भी इतने विद्वान लोग हैं, अगर उसको साक्षात्कार किया, अपना लिया, वही लोग आज नौकरी कर रहे हैं। केवल नाम मात्र के लिए डिग्री करने वाले कभी भी नौकरी नहीं करते हैं। हिंदी में एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं आता, हमारे बच्चों को हिंदी में बात करने के लिए नहीं आती है, हमारे बच्चों को जो है संबोधन करने के लिए नहीं आता।
इन लोगों को कभी भी, ये बात ध्यान में रखिए, सत्सिद्ध है जो है हमेशा के लिए, ये शाश्वत है। जो हम मेहनत करेंगे, उसको अपना लेंगे, उसको समृद्ध बनाएंगे, तभी क्या है हमें उसका लाभ होगा, अन्यथा इसका कोई भी लाभ नहीं होगा। बोलने के लिए सीखो, पढ़ने के लिए सीखो। जितने लोग एमए किए हैं उसमें से मैं श्रेष्ठ होना, मुझे जो पूरे इस भाषा को समझना चाहिए। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक इतनी सारी प्रवृत्तियां हैं, कहानी है, कविता है, नाटक है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, दलित साहित्य है, ऐसे बहुत सारे जो हिंदी साहित्य के जो विस्तृत भंडार अभी भरा पड़ा है, उसमें से आप किस विषय को कितना ग्रहण कर लेते हैं उसके माध्यम से आपको नौकरी मिलेगी, बल्कि बाकी के दृष्टि से नहीं है। केवल मैं एमए किया, बीएड किया, नौकरी नहीं मिला, ऐसा नहीं है। उसके सभी चीजों को आपको ग्रहण करना होगा, तभी आपको इससे लाभ मिलेगा। अन्यथा जो है हिंदी भाषा को कोसना उतना अच्छा नहीं होगा। अभी हर चीज में हमें, हर विषय में जो है हमें लिखने के लिए मौका मिलता है, लेकिन हम कभी भी उस विषय पर लिखने के लिए कोशिश नहीं किया। अभी स्त्री के लिए एक कविता है, मैं उसको सुनाना चाहता हूं। किसने जाना, औरत को आज तक जाना किसने, पहचाना किसने, बेटी बनकर स्नेह दी, माता बनकर ममता दी, पत्नी बनकर प्यार दी, सहेली बनकर साथ दी, परिवार की जिम्मेदारी देकर उसे व्यस्त कराया, सुस्त कराया, धर्म कर्म का पाठ सुनाया, उसे समर्पण का माला चढ़ाया, अच्छी सच्ची का सांग रचाया, घर से बाहर जाने से उसे बचाया, कहा उसे दीन, हमेशा रखा उसे अधीन। जो है इस प्रकार से हमें हर चीज में काव्य रचना करने के लिए मौका मिलता है, लेकिन हमें उसका उपयोग करना चाहिए। एक बार प्रयास करके देखिए, हिंदी साहित्य को, हिंदी भाषा को सुनना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, उसके बदले में उस पर 4 लाइन मुझे लिखना है, 4 लाइन उसके लिए तैयार करना है, ये आप प्रयास करेंगे तभी आप सार्थक हो जाएंगे। केवल मैं एमए कर लिया, बीए कर लिया, इससे कोई मतलब नहीं है। भाषा के साथ खेलना चाहिए। थोड़ा देखो, थोड़ा खेल के देखिए एक बार, तभी क्या है आप शाश्वत हो जाएंगे उस भाषा के दृष्टि से। अन्यथा सभी व्यवस्था व्यर्थ है, अनर्थ है। कोई भी शब्द का प्रयोग या इतने सारे शब्द है उसको जोड़ने का आपको नहीं आएगा तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। जो इस प्रकार के व्यवस्था जो है हिंदी साहित्य में हो, हिंदी भाषा में हो, हिंदी एक मधुर भाषा है, समृद्ध भाषा है। इस समृद्ध भाषा को हमें और भी आगे लेके जाना है। आगे भविष्य में इसके प्रति भी आप लोगों को भी भविष्य है, हिंदी में एमए करना, पीएचडी करना, शोध कार्य करने के माध्यम से आप लोगों में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। शोध कार्य करने से आपको लिखने के लिए आता है, उससे पहले जो है लिखने के लिए नहीं आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में लिखने की तरीका हम शोध कार्य में ही सीखते हैं, इसलिए आगे आप लोगों के लिए भविष्य आएगा, हम 100% आएगा। अगर राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की स्थापना होगी तो निश्चित रूप में सभी लोगों को, हिंदी वालों को मौका मिलेगा ही। उस दृष्टि से भी हमें हिंदी को ज्यादा अपना लेना चाहिए। इस प्रकार से हिंदी भाषा एक समृद्ध भाषा है, मीठी भाषा है, विश्व की भाषा है, विश्व के लोग इसको अपना रहे हैं। हम क्यों अपनाएंगे? हम भी इसको अपनाएंगे, इस पर अपना भविष्य बना लेंगे, सबसे बढ़कर जो है। और एक बात यह है, हिंदी को पेट के साथ जोड़ने से ही हमें मौका मिलता है। और एक सूचना के संदर्भ में, नई शिक्षा नीति में जो साहित्यिक अध्यापक को ज्यादा प्राधान्यता है, इसलिए ज्यादा लोगों को आगे भविष्य में नौकरी मिलेगी। इस प्रकार जो व्यवस्था है, इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए भी आप लोग आगे बढ़िए। कोरोना काल के चलते सब जो हताश हुए, उन लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूं, जीवन यही नहीं है, जीवन और भी आगे।
मन होना चाहिए, हिंदी के प्रति आकर्षित होइए, हिंदी को अपना लीजिए, हिंदी को दूसरों तक पहुंचा लीजिए और वही हिंदी आपको जीवदान देगी। जीवन के लिए जो है एक कल्पवृक्ष के रूप में आपको जीवन चलाने के लिए मौका करके देगी। अभी मैं 4 राज्य में काम किया, कर्नाटक में किया, आंध्र प्रदेश में किया और केरल में किया और तमिलनाडु में कर रहा हूँ। लेकिन इसका कारण ये है मैं हिंदी का अध्यापक हूँ। अगर मैं किसी भाषा का दूसरे का अध्यापक है तो केवल कर्नाटक में रहता था, लेकिन मुझे 4 राज्य में घूमने के लिए मौका मिला और हर जगह मुझे बात करने के लिए मौका मिला। सब मिलने का कारण ये है हिंदी है। इसलिए हिंदी को मैं प्रणाम करता हूँ, हिंदी अध्यापकों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज मैं जीवित हूँ, आज मैं जी रहा हूँ, मुझे अन्न मिल रहा है वो हिंदी के कारण से मिल रहा है। हमारे सभी अध्यापकगण, हिंदी के अध्यापकगण हमें अन्न हिंदी दे रहे हैं। हिंदी भाषा को हम समृद्ध करेंगे बोल के जब मन में आता है, हिंदी समृद्ध हो जाएगी और कोई दूसरी चारा इसमें है ही नहीं। सब लोगों के मन में आना चाहिए कि हिंदी हमें अन्न दे रही है, उस अन्न के प्रति हमें ऋणी रहना चाहिए। तो इनके मुझे इस संदर्भ में यह आता है कि निराला जी के काव्य जिस थाली में खाते हैं उसको छेद नहीं करना चाहिए। हम हिंदी का खाते हैं, हिंदी के कारण से हमें एक गौरव मिल रहा है, उस गौरव को बनाए रखेंगे और हिंदी को भी गौरव देंगे। क्योंकि मुझे कोचिन यूनिवर्सिटी का एक मीटिंग है, क्षमा कीजिए, नहीं तो और भी आधा घंटा मैं भाषण देता था, क्योंकि 4 बजे तक था, अभी 4:30 बज गए, अभी और एक 5 मिनट में मुझे वहां ज्वाइन होना है, एक वाइवा है, इसलिए क्षमा कीजिए। और एक दिन हम मिलेंगे जो किसी विषय को लेकर भविष्य में आप लोगों के साथ हम जुड़े रहेंगे, क्योंकि अभी हिंदी साहित्य के अध्यापक है, मतलब अपने परिवार के लोग हैं। इस परिवार को हमें समृद्ध बनाना चाहिए। इतना मैं बोलते हुए मेरे विचार को पूर्ण विराम देता हूँ। मुझे इस संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर शिक्षण संस्था के बी शंकरानंद कला तथा वाणिज्य महाविद्यालय कुर्ची के सभी अध्यापकगण, सभी समिति के सदस्य और प्राचार्य, सभी लोगों ने मुझे एक मौका दिया। सबसे बढ़कर सुरेखा जी से भी हम बात करते रहेंगे इसके बाद, क्योंकि हिंदी को पूरे विश्व तक पहुंच गई है, हमें पहुंचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम भी छोटे मोटे कार्य करते रहेंगे। मैं कन्नड़ में भी कविता को लिखता हूँ, हिंदी में भी लिखता हूँ, तो इसलिए आपसे भी हम ज्ञान हासिल करते रहेंगे, है ना। सभी लोगों से हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए हमेशा। और उसके साथ साथ हमारे विनोद जी भी ऐसे ही एक स्नेह जीवी है, सबसे बढ़कर जो है सभी से स्नेह के साथ रहते हैं, इसलिए उनको भी इस संदर्भ में धन्यवाद देता हूँ। सुरेखा जी को भी धन्यवाद देता हूँ, इस कॉलेज के प्राचार्य और अन्य अध्यापकगण सबको धन्यवाद देता हूँ जो मुझे अवसर दिया जो बात करने के लिए। हम हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे हिंदी साहित्यिक सेवा के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत अच्छे विचारों को हमारे लिए आपने दिए हैं और इन विचारों के साथ हम भी यही चाहते हैं सर, हम भी हिंदी का अन्न खाना खाते हैं और इसी अन्न का ऋण अदा करना, कितना भी कीजिएगा ये ऋण तो अदा नहीं होता, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसका ऋण जितना हो सकता है उतना हम इसका अन्न का ऋण हम निभाने की कोशिश अवश्य करेंगे सर। बिल्कुल अवश्य सर। धन्यवाद सर, इतने अनमोल विचारों को हमारे सामने आपने रखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ इस कार्यक्रम धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। यहाँ इस कार्यक्रम के आज ये 7वां व्याख्यान माला है और इस 7वें व्याख्यान माला ही हमारे ये क्रम के अनुसार जो लगातार चलते आ रहा था, ये सीरीज आज खत्म होने जा रहा है। इसलिए मैं बच्चों से अनुरोध करती हूँ कि इन 7 दिनों में
उन्हें जो अनुभूति हुई है, इस अनुभूति विचारों को जो गहन ज्ञान मिला है, उस ज्ञान के बारे में अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर करें। सौंदर्या। हाँ रे मैडम। हाँ जी। उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मैं आज इस साप्ताहिक व्याख्यान माला में अपनी कुछ बातें स्पष्ट करना चाहती हूँ। माइक, तुम्हारा ये कैमरा ओपन कर। पहला व्याख्यान माला में हमें नाटक के बारे में कुछ विषय सीखने को मिला, जैसे कि नाटक के पात्र, नाटक के प्रभेद, नाटक के प्रकार और नाटक के महत्व, इसका ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरे व्याख्यान हमारे पाठ्यक्रम के एकांकी एक तरह एफएम की कीमत, उसकी सामाजिक विचारधारा के समाज में चलने वाले विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त। दूसरे व्याख्यान माला में हमें काव्य के माध्यम से हम सबको कोरोना की इस महामारी से हमें क्या करना है और उसे कैसे मिटाना है, इस तरह का धैर्य हमें मिला। चौथे व्याख्यान माल में हमें अनुवाद के बारे में हमें ज्ञान हासिल हुआ। इसमें हमें हिंदी भाषा के माध्यम से एक वाक्य को हमारे सभी भाषा में अनुवाद करने का एक ज्ञान प्राप्त हुआ। पांचवा व्याख्यान माला में हमें प्रशासनिक हिंदी या प्रयोजन मूलक हिंदी, इसमें हमें एक बहुत अच्छा विषय मिला है कि हिंदी एक ऐसी शक्ति है, हमें कहाँ पर भी एक तो अवकाश मिलता है। जैसे कि हमारे भारत में वेबसाइट के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त हुई है, उसके सहयोग से हम नौकरी कर सकते हैं। कल के व्याख्यान माला में हमें हमारे भारत की राष्ट्रभाषा और उसका महत्व, उसका विकास के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। विदेशी के लोग हमारे क्रांतिवीरों के समुद्रयान से लेकर उनके साथ कठिन शिक्षा देते थे। गांधी जी बेलगाम आकर पहला हिंदी भाषा का विस्तार किया था। नेहरू जी ने उन्होंने हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के महत्व विकास सभी क्रांतिवीरों में एक हौसला बढ़ाया। इसमें हम कल हिंदी क्या था, अब हिंदी कैसा है और आगे कैसा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर मंजुनाथ अंबिग सर जी, उन्होंने भी आज के हिंदी के बारे में अनमोल आपका विचार स्पष्ट करने के लिए आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद सौंदर्या जी। और कोई है जो अपने विचार यहाँ रखने वाले? संजना। और कोई है? आयत मैडम। हाँ रे सर, आयत रे सर। यहाँ इस कार्यक्रम के समारोह के अध्यक्षीय स्थान ग्रहण किए हुए प्रोफेसर JS दोडमनी सर जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे अपने अध्यक्षीय भाषण दे। Respected CPS, Dr. Manjunath Ambig sir, Hindi Prachar Sabha, Chennai, Principal S. Kamble of our college, and K.C. Belagri, HOD of Hindi Department, and P.T. Rodan, our organizing secretary, and M.I. German sir, Kallolikar sir, and M.L. Fazluni sir, and my colleagues, and my dear. The first part of my speaking is on opinion of this function, and the second part will be
president of this function. First, I clarify you. As a senior employee of this college, it's become a duty to share my opinion of this program. Hindi department of our college, headed by S.A. Balagli and P.T. Rodano, took a good initiative. They have organized the program very systematically and invited stalwart professors to this program. In the beginning, let me recollect some of sessions headed by us. Dr. Sridhar Hegde, Dean of Kriappa University, Kodagu, attended as a resource person on 14/6/2021. He spoke on translation of language. In his speech, elucidated the art and the science of the methods of translation. He said a person needed full of knowledge and vocabulary of those language while translating. He added about the job of opportunity available in government and private sectors. The students should study hard, grab the job. On 15/6/2021, P. Raghavendra, the translator, Nuclear Power Project Tega, attended the program as resource person. He said his thoughts on the topic of communication and letter writing skill. He said about the importance of writing of letters in government and private sector. He encouraged the students to get opportunities in government and private sectors for the post of translators. He surprised the student by saying about the amount of salary, which is about 5 lakh per month if one gets a job there in the foreign embassy. Let a student should know this truth. On 16/6/2021, Suman Rodkar, professor of Hindi, Mangalore University, attended as a resource person for the topic of history of Hindi literature. She spoke in detail how the language evolved from the ancient period to till today. She appealed the students to follow the path of Kabir Dasa, whose literature gave emphasis on communal harmony in society. Finally, I would like to appreciate wholeheartedly Hindi department for encouraging online guest lecturer series for the week. Now I come to this function. I have to say something about the Manjunath Ambesar. Today's chief guest Manjunath sir spoke on the popularity of Hindi language in Ahimsa Pradesh in India, and foreigners are also accepting Hindi language day by day. He encouraged the students to learn, speak more language. He encouraged the students to learn and to speak more language. The one personality is developed from talking more language. He spoke on Kabir Dasa and Tulsi Dasa literature. He urged the students to read such literature to build up your career. He urged the students to love the other language. If one loves the other language, he tried to learn and speak. And he spoke to come out from the narrow space and loves the other language.
and he said that the student should have to earn knowledge. Every student should know. He said that the student should have to earn knowledge in the college days. Earn the knowledge in college days, not to get only certificate. Isn't it? I conclude my speech with quotation for students. To get success in your life, most importantly, you need to set your objective, those things which will help you in making progress. Thank you for listening, one and all. Okay. धन्यवाद दडमनी सर। अब मैं यहाँ आखिरी पड़ाव पर आ जाती हूँ धन्यवाद अर्पण करने के लिए। वंदनार्पण मैं सौंदर्य पोतदार जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे इस सभा को धन्यवाद अर्पण करें। सौंदर्य। हाँ री हाँ ಮೇಡಮ್ हाँ ರೀ ಹೇಳ್ರಿ। ಸೌಂದರ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಟ್ಟಾಯ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ರಿ ಸರ ಅದಾಳ್ರಿ। ಬರೇ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾ ರೀ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ರಿ ಸರ। ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್। ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ? ಜರ್ಮನ್ ಸರ್, ಜರ್ಮನ್ ಸರ್, ಜರ್ಮನ್ ಸರ್ ನಿಮ್ ಮೈಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ। ಜರ್ಮನ್ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹಾ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಹಾ ಅವ್ರ ಯಾರು ಮಾತಾಡುವಾರ ಸರ್? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ಹಾ ಹಾ ಈಗ ಲೆಕ್ಕ ಅದಾಳ ನೋಡ್ರಿ। ಬಂದ್ರದ ಆದ್ರ ಬರ್ತಾರ ರೀ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲು ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಿಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದ ಅದ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಈಗ ರೀ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೇನ್ರಿ? ಹಾ ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ರಿ ಸರ್ ನೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾ ಮಾಡ್ರಿ ಹಾ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್। ओके 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 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर शिक्षण संस्था बी शंकरानंद कला तथा वाणिज्य महाविद्यालय कुर्ची इसके 7 रोजा सीरीज जो क्या है व्याकरण के ताल्लुक से जो क्या है सभाएं रखी गई हैं, कार्यक्रम रखे गए क्या है देखो हैं, उनके इस आखिरी क्या है देखो भाई पड़ाव में मतलब इस आखिरी सेमिनार में मतलब उपन्यास में उपस्थित डॉक्टर मंजुनाथ अंबिगी सर को हमारी संस्था की ओर से और हमारे हिंदी डिपार्टमेंट की ओर से और साथ में हमारे प्राध्यापक वृंद की ओर से हम उनको अभिनंदन क्या है को कहते हैं और साथ ही साथ उसी तरह हमारे प्यारे विद्यार्थियों को भी हम अभिनंदन क्या है को कहते हैं और साथ ही उसी तरह हम लोग इस 7 रोज के इस व्याकरण सेमिनार्स में समझिए या उपन्यास में हमारे डॉक्टर एस.ए. बयाली मैडम जी, वीटी रोडन नवर सर और इससे क्या है देखो हटकर और भी हमारे क्या है देखो सिब्बंदी वर्ग लोगों ने इसमें अपना हिस्सा लिया है, पार्ट क्या है देखो किया क्या है देखो उन सब का हम लोग अपनी तरफ से इस संस्था की तरफ से और क्या सभा की ओर से धन्यवाद अर्पित करते हैं। हम नमस्कार ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ ಖಜಿಟಣಿ ಸರ್ದ ಒಂದ್ ವಿಚಾರದ ಮೇಲ ನಾವ ಮತ್ ಎಲ್ಲಾರು ಉಳ್ದಿವ್ರಿ ಸರ गेस्ट ಒಬ್ರ ಹೊರಗ್ ಹೋಗ್ಯಾರ್ರಿ। यहाँ 7 दिनों की जो हमारी जो सूची है कार्यक्रम का जो आयोजन किया था उसका एक हाइलाइट्स यहाँ पर हो जाए ये बात खजीडोनी सर जी की विचार थी। तो इस विचार के आधार पर मैं उस विषय को मैं यहाँ रखना चाहूंगी। इन 7 दिनों में जो जो हमने अनुभव किया, यहाँ तकनीकी की समस्याएं भी हमारे साथ रहे और साथ ही यहाँ हमारी जो एक और दुखद स्थिति यही रही कि ये तकनीकी का कारण हुआ
या लॉकडाउन के कारण यहाँ ऑनलाइन के संदर्भ में बच्चे जुड़ नहीं पाए, क्या कारण हुआ ये हमें उतना स्पष्टीकरण नहीं हो पाया। फिर भी यहाँ हमसे जितना हो सकता था हमने उतना उसमें संतुष्टि का यहाँ हम सांस लेते हैं। खुशी होती है कि हमने जो प्रयत्न किया था उस प्रयत्न में और हमारी जो सोच थी उस सोच की आज आखिरी पड़ाव में हम खड़े हैं। सर किसी का माइक ओपन है जो आवाज आ रही है। यहाँ जो इन 7 दिनों में हमने शुरुआती में यही सोचा था कि विद्यार्थियों के लिए कुछ ना कुछ देना है, कारण हमें ऑनलाइन की क्लास लेने में ही हमें नहीं आता था। ऐसे में ऑनलाइन क्लास लेने की जो जानकारी हम इधर उधर से ढूंढ के हम कर रहे थे, और सर्वप्रथम मुझे ये ज्ञान जर्मन सर के द्वारा ही मुझे मिली है, कारण वो मुझसे पहले क्लास लेने की शुरुआत उन्होंने कर चुके थे और उनके क्लास लेने के अंदाज से ही एक बार उन्होंने कहा था कि मैं लिंक आपको छोड़ दूंगा और तब आप जुड़िएगा और हमारे बच्चों के लिए कुछ अपने विचार रखिएगा। तो इसी आधार पर हमने कार्यक्रम करने की जो ठान ली, सोच रखा, और उसमें यहाँ हमने वो करने की जी तोड़ प्रयत्न हमने किया है। यहाँ सफल हुआ या असफल हुआ, यहाँ जो पार्टिसिपेट है, जो यहाँ सहभागी होकर इस कार्यक्रम का जो आंखों देखा हाल जिन्होंने देखा सुना वो इसका जज कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ यही कह सकते हैं कि हमने जो सोचकर, कारण गिरते गिरते लंगड़ते हमने प्रयत्न किया था, उस प्रयत्न में हम आज सफल हो चुके हैं। और इसी सफलता की सीढ़ी शुरू में हमने 1 घंटे का कार्यक्रम के रूप में हमने आयोजन किया और डॉक्टर सुमंगला अंगड़ी मैडम सर्वप्रथम, कारण मेरे सामने वही एक पहले दिखाई दी, कारण प्रैक्टिकल के रूप में उसे हमने ले लिए और वो प्रैक्टिकल जब सफल हुआ तो हमें एक विश्वास हमारे मन में जागृत हुई और उसी विश्वास के आधार पर दूसरे यहाँ वक्ता के रूप में हमने लिया हामिदा अरबर मैडम जी को, और हामिदा अरबर मैडम जी की भी कार्यक्रम सफल हुई। और सफलता के बाद देखिएगा, एक बार इंसान को सफलता की चस्का लग जाती है तो वो रुकने का नाम नहीं लेता।